مرزا غلام احمد قادیانی، ایک متنازع شخصیت اور اسلامی عقائد کا امتحان۔ مرزا غلام احمد قادیانی 19 صدی کے آخر میں ایک مشہور لیکن متنازع شخصیت کے طور پر ابھرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کی زندگی، دعوے اور تحریک ایک ایسا موضوع ہے جو مسلمانوں کے لیے علمی، مذہبی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر طالب علموں کے لیے جو مذہبی اختلافات کی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ مضمون ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے اور علماء اسلام کی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد 13 فروری 1835 کو گرداسپور کے قصبے قادیان میں پیدا ہوئے، جس کا آج کا علاقہ پاکستان میں ہے۔ ان کا تعلق ایک متمول لیکن زوال پذیر مغلیہ خاندان سے تھا جو سکھ دور میں اپنی زمینوں سے محروم ہوا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی سطح پر حاصل کی، جہاں فارسی، عربی اور دینی علوم میں ابتدائی مہارت حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود ان کا زیادہ تر وقت مذہبی اور روحانی کتب کے مطالعے میں گزرا۔ ان کے یہ مطالعے بعد میں ان کے غیر معمولی دعووں اور تحریک کی بنیاد بنے۔ 1866 میں مرزا غلام احمد نے ضلع سیالکوٹ میں سرکاری ملازمت کے طور پر کلرک کا کام کیا، لیکن جلد ہی یہ ملازمت چھوڑ کر قادیان واپس آ گئے۔ ابتدائی دور میں وہ اپنی تمام توجہ اسلامی عقائد کے دفاع، تحریری کاموں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ علمی مناظروں پر مرکوز کر چکے تھے۔ 1879 میں ان کی مشہور کتاب براہین احمدیہ شائع ہوئی، جو اسلام کی حقانیت اور اس کے دفاع کے موضوع پر مبنی تھی۔ اس کتاب نے انہیں ایک حد تک شہرت دلوائی اور ان کے خیالات کے ابتدائی حامیوں کو جمع کیا۔ مرزا غلام احمد نے ابتدائی طور پر خود کو مجدد اور احمدی قرار دیا اور بعد میں 1889 میں بیعت کا آغاز کیا۔ اسی عہد میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا بھی اعلان کیا، یہ کہتے ہوئے کہ حضرت عیسی وفات پا چکے ہیں اور ان کی دوبارہ آمد کی پیشین گوئیاں ان کے وجود پر پوری ہوتی ہیں۔ 1901 میں مرزا غلام احمد نے اپنے دعووں کو مزید بڑھاتے ہوئے نبوت کا واضح اعلان کرتے ہوئے خود کو ازلب اور بروزی نبی کہا۔ اس دعوے نے مسلمانوں کے درمیان شدید غم و غصے کو جنم دیا، کیونکہ ختم نبوت اسلامی عقائد کا بنیادی ترین پہلو ہے۔ نتیجے میں علماء اسلام نے ان کے خلاف فتوے دیے اور انہیں مرتد قرار دیا۔ مرزا غلام احمد نے احمدیہ جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے دعووں کی بھرپور تبلیغ شروع کی۔ ان کے پیروکار انہیں امام اعظم اور مسیح موعود کے طور پر ماننے لگے۔ قادیان ان کے مشن کا مرکز بن گیا، جہاں انہوں نے اپنے پیغام کو منظم انداز میں پھیلایا۔ احمدیہ تحریک نے کئی سوالات اور اختلافات کو جنم دیا۔ ایک طرف احمدی جماعت ان کے دعووں کو حق مانتی ہے، تو دوسری طرف غالب علماء اور اسلامی مکاتب فکر ان کے دعووں کو سری گمراہی قرار دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی کئی پیشگوئیاں مشہور ہیں جو پوری نہ ہو سکی۔ ان میں سے ڈاکٹر عبدالحکیم اور لیکرام کے حوالے سے کی گئی پیشگوئیاں نمایاں ہیں۔ ان کی ناکام پیشن گوئیوں اور دعووں نے کئی عوامی مہمات، مناظروں اور تحریری مباحث کو جنم دیا، جس سے ان کی شخصیت مزید متنازع ہو گئی۔ مرزا غلام احمد کی وفات 26 مئی 1908 کو لاہور میں ہوئی، جو عام روایات کے مطابق اسہال، ڈائریا اور پیچش جیسے امراض کے باعث ہوئی۔ کئی علماء اور ان کے مخالفین نے ان کی وفات کو ان کے دعووں کی ناکامی اور قدرت کے عدل کے ایک نتیجے کے طور پر بیان کیا۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق نبی اکرم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت دعوے کو جھوٹ اور ارتداد سمجھا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد کے عقائد کو تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر رد کرتے ہوئے انہیں اسلام سے خارج قرار دیا۔ ملک بھر کے علماء کرام نے علمی اور عوامی سطح پر ان نظریات کے خلاف پوری قوت سے جدوجہد کی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے رہنما ان مباحث میں نمایاں رہے، جنہوں نے تحریری اور مناظرتی سطح پر مرزا غلام احمد کے عقائد کو رد کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد ان کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قادیانی جماعت، یہ جماعت مرزا غلام احمد کو نبی مانتی ہے۔
लाहौरी जमात, ये जमात इन्हें सिर्फ एक मुसल्ले और इमाम के तौर पर तस्लीम करती है। आज अहमदिया जमात मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है, लेकिन इस्लामी दुनिया में उनके पैरोकारों को गैर मुस्लिम तस्वुर किया जाता। तलबा के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ज़िंदगी और तहरीक का मुताला अहम है, क्योंकि ये इस्लामी अक़ायद और मुआशरती वहदत पर असरात डालने वाले इख्तिलाफ़ात को समझने का मौका फ़राहम करता है। ये पहलू नौजवान ज़हनों को तहक़ीक़, तारीख़ और दीन के बारे में गहराई से सोचने की तरग़ीब देता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की ज़िंदगी और दावे इस्लामी अक़ायद के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से उन्हें सख्त तनक़ीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। उनके दावों के नताइज, उनकी पेशगोइयों की नाकामी और ख़ुत्म नबुव्वत पर उम्मत मुस्लिमा का ठोस ईमान नौजवान नस्ल को दीन के उसूलों पर गौर व फ़िक्र की तरग़ीब देता है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुसलमानों ने हमेशा ख़ुत्म नबुव्वत के अक़ीदे को ईमान का असासी हिस्सा तस्लीम किया है। 4 मशहूर अइम्मा फ़िक़ा, इस्लामी फ़िक़ा की बुनियादें। 4 मशहूर अलिफ़ फ़िक़ा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल इस्लामी फ़िक़ा के अज़ीम सतून हैं, जिनकी तालीमात इस्लामी शरीयत की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। इनके इल्म की रोशनी में हमें कुरान, सन्नत, हदीस और इज्तिहाद का एक जामे फ़हम हासिल होता है। यह इसबाक़ तालिब इल्मों के लिए दीनी इल्म को बेहतर तौर पर समझने, अमली ज़िंदगी में अहकाम शरीयत को नाफिज करने और उम्मत मुस्लिमा के फ़िक्री तनव्वुर को सराहने की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। ज़ैल में उन चारों अइम्मा की शख्सियत और उनके फ़िक़ही उसूलों पर रोशनी डाली गई है, ताकि तलबा बसीरत हासिल करें और अपने दीन को गहराई से समझ सकें। इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म के लक़ब से याद किया जाता है। वो अपने गहरे इज्तिहादी फ़िक्र और क़ियास के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं। फ़िक़ही उसूल: इमाम अबू हनीफ़ा ने क़ियास, इज्तिहाद और इस्तिहसान उसूली ज़वाहिर के बजाय मुफ़ाद आमा पर मबनी हल को इख्तियार करना पर ज़ोर दिया। उन्होंने फ़ौरी मसाइल के हल में इज्तिहाद को एक अहम ज़रिया बनाया, जो आज के तलबा को मसाइल के अमली हल तलाश करने की तरग़ीब देता है। हदीस की कबूलियत: उन्होंने मुतवातिर और मशहूर अहादीस को अहमियत दी, लेकिन अगर ज़ईफ़ हदीस उनके क़ियास से मज़बूत दलील फ़राहम करती, तो वो इसे तरजीह देते। सन्नत की तशरीह: सन्नत की तशरीह इमाम अबू हनीफ़ा ने सहाब कराम के अमल और उम्मत के तामुल की रोशनी में की। कुरान की तशरीह: कुरान करीम की तशरीह में वाज़ेह अहकाम के साथ क़ियास और इज्तिहाद का सहारा लिया। उनका तरीक़ा तालीम बताता है कि इस्लामी इल्म में गौर व फ़िक्र और अक़ली दलाइल को अपनाना तालिब-इल्मों के लिए निहायत अहम है। इमाम मालिक को मदीना के इल्मी वर्से का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ माना जाता है। वो अहादीस और मदीना के अमली मामूलात की रोशनी में फ़िक़ा की तश्कील करते थे। फ़िक़ही उसूल: इमाम मालिक ने अमल अहले मदीना को एक काबिल एतमाद दीनी उसूल करार दिया। हदीस की कबूलियत: इमाम मालिक ने हदीस की सेहत पर सख्ती से अमल किया और अहल मदीना की रवायत को ज़्यादा मुस्तनद समझा। सन्नत की तशरीह: सन्नत को हदीस और मदीना के अमली मामूलात की रोशनी में समझा। कुरान की तशरीह: उन्होंने कुरान पाक की वज़ाहत मदनी अमल की रोशनी में की। तलबा के लिए इमाम मालिक की ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि दीन के सही अमली पहलू को अपनाना ज़िंदगी को सही समत में ले जाने में मददगार साबित होता है। इमाम शाफ़ी फ़िक़ा इस्लामी को मुनज़्ज़म और उसूलबंद करने वाले माहिरीन में शुमार होते हैं। इनके उसूल फ़िक़ा आज भी इस्लामी तालीमात की बुनियाद फ़राहम करते हैं। फ़िक़ही उसूल: इमाम शाफ़ी ने क़ियास, इज्मा और इस्तिदलाल को मुनज़्ज़म करते हुए हदीस और सन्नत को बुनियादी माख़ज़ करार दिया। हदीस की कबूलियत: ज़ईफ़ हदीस के बजाय सही हदीस को तरजीह दी और उसूल हदीस मुरतब किए, जिनकी बदौलत अहादीस की सच्चाई की तहक़ीक़ का मेयार कायम हुआ। सन्नत की तशरीह: सन्नत रसूल को तमाम दीगर ज़राए पर बालातर समझा। कुरान की तशरीह: कुरान को अहादीस की रोशनी में समझने पर ज़ोर दिया और इज्तिहाद को महदूद किया। तलबा के लिए इमाम शाफ़ी की तालीमात इस बात का सबक हैं कि मज़बूत बुनियादों के साथ दीनी इल्म को सीखा जाए ताकि मुस्तक़बिल के लिए सही रहनुमाई हासिल हो सके।
इमाम अहमद बिन हम्बल को हदीस के अजीम मुहाफिज के तौर पर याद किया जाता है। उनका फ़िक़ही निज़ाम हदीस पर ज़्यादा इन्हिसार करता है। फ़िक़ही उसूल: इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस को फ़िक़ह का सबसे मज़बूत माख़ज़ करार दिया और क़ियास का कम इस्तेमाल किया। हदीस की कबूलियत: ज़ईफ़ हदीस को भी क़ियास पर तरजीह दी, बशर्ते कि वो झूठ पर मबनी ना हो। संत की तशरीह: सन रसूल को मरकज़ी हैसियत दी और सहाबा के इख्तिलाफ़ात को अहमियत दी। कुरान की तशरीह: मुकम्मल इन्हिसार कुरान की तशरीह में हदीस और संत पर किया। तलबा के लिए ये रोशनी फराहम करती है कि दीनी तालीम में सख्त मेहनत, सच्चाई और हदीस का लाजमी किरदार किस कदर अहम है। तमाम चारों अइम्मा के माबैन चंद उमूर में मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ है। कुरान को दीन का सबसे बड़ा माख़ज़ तस्लीम किया गया। संत को दीन के दूसरे बड़े माख़ज़ के तौर पर कबूल किया गया। इज्मा: उम्मत के इज्मा को हुज्जत तस्लीम किया गया। हदीस: सही और मुतवातिर हदीस को काबिल कबूल समझा गया। ये तमाम पहलू इस्लामी तालीमात की मज़बूत बुनियादें फ़राहम करते हैं, जिन्हें समझना और अपनाना तलबा के लिए ज़रूरी है। अगरचे चारों अइम्मा के दरमियान कई उमूर पर इत्तिफ़ाक़ पाया जाता है, लेकिन उनके इख्तिलाफ़ात उम्मत में फ़िक्री गहराई और तनव्वुर पैदा करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ने ज़ईफ़ हदीस पर क़ियास को तरजीह दी, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसे क़ियास पर फ़ौक़ियत दी। इमाम मालिक ने अमल अहले मदीना को अहमियत दी, जबकि इमाम शाफ़ी ने इसे हदीस के ताबे रखा। इमाम अबू हनीफ़ा ने इज्तिहाद को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़्यादा इन्हिसार हदीस पर किया। इन इख्तिलाफ़ात से पता चलता है कि दीन अपनी तालीमात में गहरे गौर व फ़िक्र और फ़िक्री तनव्वुर के साथ हमें यकजहती की सबील भी फ़राहम करता है। तलबा के लिए ये इख्तिलाफ़ात इस्लाम के अंदर इत्तिहादी उसूलों और इल्मी दियानत को समझने का एक रहनुमा सबक है। इस्लामी तारीख़ की मायानाज़ मुस्लिम ख़वातीन एक तालीमी जायज़ा। दुनिया की तारीख़ को तश्कील देने में ख़वातीन का निहायत अहम किरदार रहा है और इस्लामी तारीख़ भी इससे मुबर्रा नहीं। ये खूबसूरत हक़ाइक़ हमें बावर कराते हैं कि ख़वातीन ने इल्म, क़ियादत, मुआशरती खिदमत और ईमान में अनमित नक्श छोड़े हैं। आज हम 10 ऐसी अजीम मुस्लिम ख़वातीन का अहवाल करेंगे जो न सिर्फ अपने वक्त बल्कि आज की मुस्लिम ख़वातीन के लिए भी मशअल्ला हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र करते हुए हमें इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ याद आती है। हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि इस्लाम की जड़ों को मजबूत करने में आपका अहम किरदार रहा है। आप पहली खातून मुसलमान थी और हुजूर नबी करीम की पहली ज़ौजा मोहतरमा। अपनी दौलत और कारोबारी फ़हम व फ़िरासत से इस्लाम की मदद की। क्या आप जानते हैं कि जब नबी अकरम को पहली वही आई तो आपने किस तरह अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हिमायत हासिल की? अपने हर तरह का हौसला दिया, यहाँ तक कि अपने माल और दौलत को दीन की राह में लगा दिया। हमें अब से बेहद अक़ीदत, खिदमत और कुर्बानी का सबक मिलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक अजीम आलमा और महसा थी। अपने इस्लामी फ़िक़ा की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। आपको ख़वातीन के लिए तालीम की अहमियत ज़ाहिर करने की एक नुमायाँ मिसाल समझा जा सकता है। अपने हज़ारों अहादीस बयान की, जिनकी वजह से आज हम इस्लामी तालीमात को समझते हैं। एक और अहम पहलू आपकी सियासी बसीरत है, जो जंग जमल के दौरान वाज़े हो गई। आपकी शख्सियत मुस्लिम ख़वातीन को ये सिखाती है कि इल्म के मैदान के साथ क़ियादत में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम की बेटी और ख़वातीन के लिए मिसाली किरदार हैं। आपकी सादगी, सब्र और मज़बूत ईमान की वजह से आपको जन्नत की ख़वातीन की सरदार कहा गया। दुनियावी ताल्लुकात, फ़ारिग़ अल-बाली और मुश्किलात के दौरान भी आप साबित कदम रहे। आपकी ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि मुश्किल हालात में भी ख़वातीन सब्र, वक़ार और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकती हैं। राबिया बसरी इस्लाम की पहली मशहूर सूफ़ी खातून थी।
ان کا فلسفہ محبت الہی کے گرد گھومتا ہے۔ آپ کی دعائیں اور تعلیمات اسلامی تصوف کی بنیاد بنیں۔ آپ کی داستانیں خواتین کو روحانی طور پر مضبوط بناتی ہیں اور یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی محبت اور عبادت سب سے اہم ہے۔ زبیدہ بنت جعفر کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے معاشرتی خدمات انجام دی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ ہونے کے ناطے اپنے مکہ مکرمہ کے لیے زبیدہ نہر کی تعمیر کروائی، جس سے حجاج کرام اور عوام کی زندگی آسان ہوئی۔ آپ اسلامی فن تعمیر اور تعلیم کی سرپرستی بھی کرتی رہی۔ آپ کا یہ کام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواتین معاشرتی بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنی بہادری اور عزم کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ہجرت کے دوران اپنے نبی اکرم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدد کی۔ یہ خواتین ہمارے لیے یہ مثال ہیں کہ مشکل وقت میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور صحیح کارروائی کرنا کتنا ضروری ہے۔ شجر الدر ایوبی سلطنت کی حکمران تھی، جنہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی اور قیادت سے تاریخ میں نام بنایا۔ آپ کا دور اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین میں قیادت کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ان کی کامیاب کوششیں مسلم خواتین میں حوصلہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ اعلیٰ معیاری قیادت فراہم کر سکتی ہیں۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامعہ القرویہ کی بانی فاطمہ الازہری ایک روشن مثال ہیں کہ خواتین تعلیم کے فروغ میں کیسے غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کی اس کاوش سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانی پہچانی حدود سے بڑھ کر سوچنا اور جدت پیدا کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے جنگوں میں نبی اکرم کا دفاع کیا۔ آپ کی بہادری اسلامی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جو خواتین کو قربانی اور جدوجہد کا پیغام دیتا ہے۔ آج کی خواتین کو بھی غیر مشروط اختیارات اور حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی علمی و عملی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ رضیہ سلطانہ دہلی سلطنت کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ انصاف، بہادری اور عوامی فلاح و بہبود میں آپ کی خدمات مثالی ہیں۔ آپ کی شخصیت خواتین کو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ وہ قیادت، مساوات اور طاقت کے میدان میں اپنی موجودگی کو تسلیم کروائیں۔ یہ عظیم مسلم خواتین نہ صرف اپنے وقت کی مایہ ناز شخصیتیں تھیں، بلکہ آج بھی ان کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی کی ہر مشکل میں ثابت قدمی، علم، قیادت اور ایمان کے جوہر سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے پر مسلمان خواتین ایک روشن اور مثبت مستقبل تعمیر کر سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان، صبر، ایمان اور فتح کا پیغام۔ قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے جو آج کے نوجوانوں کے لیے بے شمار سبق اور روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ کہانی انسان کو ایمان سے منسلک کرتے ہوئے صبر کی اہمیت اور اللہ کے وعدوں کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ آئیے اس دلکش اور اہم کہانی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ فرعون، مصر کا ایک ظالم حکمران، خود کو خدا کہلاتا تھا اور بنی اسرائیل پر بدترین ظلم کرتا تھا۔ ایک دن فرعون کے نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ وہ اپنے معصوم بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا، مگر اللہ کی یقین دہانی نے ان کے دل کو سکون دیا۔ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچا، جہاں اس کی بیوی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی طرح پالنے کی اجازت مانگی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہی موسیٰ فرعون کے محل میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، اس کے ذریعے فرعون کی تباہی لکھی جا چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی بھی اللہ کے پلان کا حصہ تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری بنی اسرائیل کے غلام کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انصاف کے لیے قدم اٹھایا، لیکن اتفاقاً اس مصری کی موت ہو گئی۔
मूसा अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ना पड़ा और वो मदीन के इलाके में चले गए। यहाँ वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ रहे, जहाँ उन्हें हिकमत, सब्र और क़ियादत के मज़ीद असबाक सीखने का मौका मिला। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की और कई साल आराम और सीखने के इस दौर में गुजरा, जिसके बाद उन्हें अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना। एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की जानिब लूट रहे थे कि रास्ते में खुआ तौर पर उनकी मुलाकात अल्लाह से हुई। ये लम्हा उनके लिए निहायत अजीम था। अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत से नवाजा और कई मोजज़ात दिए, जैसे उनका असा सांप बन जाता था और उनके हाथ से नूर निकलता था। ये मोजज़ात उन्हें फ़िरौन और उसके लोगों के सामने अल्लाह की सच्चाई पेश करने के लिए दिए गए थे। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह अपने बंदों को हमेशा मदद फराहम करता है और आजमाइश के ज़रिए उन्हें बड़े मकासद के लिए तैयार करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में कदम रखा और उसे अल्लाह की तौहीद की दावत दी। उन्होंने बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया, लेकिन फ़िरौन ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए गए मोजज़ात दिखाए, जिनमें असा का सांप में तब्दील होना और जादूगरों को शिकस्त देना शामिल था। फ़िरौन अपनी ज़िद और तकब्बुर के बायस अल्लाह के वाज़े निशानात के बावजूद ईमान न लाया। ये बात नौजवानों के लिए एक अहम सबक है कि गुरूर और जुल्म इंसान को हिदायत से दूर कर देते हैं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को आज़ादी दिलाने का अज़्म किया। एक रात उन्होंने अपने कौम को मिस्र से निकालना शुरू किया। फ़िरौन को जब उनकी रवानगी का इल्म हुआ तो वो अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने निकला, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई फरमाई। जब वो दरियाए नील पर पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी और दरिया में रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से महफूज तौर पर गुजर गए, लेकिन जब फ़िरौन और उसका लश्कर उन्हीं रास्तों से गुजरने लगा तो दरिया अपनी असली हालत में वापस आ गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। ये लम्हा हमें दिखाता है कि अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं हो सकते और जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। फ़िरौन की तबाही के बाद बनी इसराइल को आज़ादी मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाया। ये कहानी ईमान, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद की एक रोशन मिसाल है। नौजवान नस्ल के लिए इस दास्तान में ये पैगाम है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हमेशा आजमाइशों का सामना करते हैं, लेकिन वही आजमाइशें हमें मजबूत बनाती हैं और अगर हम अल्लाह से जुड़े रहें तो फतह और कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि जब हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और भरोसा अल्लाह की कुदरत पर रखते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी मालूम होती है। अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं, बस हमें सब्र और यकीन को अपना रहनुमा बनाना होगा। असहाब कहफ, ईमान, सब्र और अल्लाह की रहमत की अजीम कहानी। कुरान मजीद में असहाब कहफ की कहानी सूरा कहफ सूरा 18 में बयान की गई है। ये कहानी नौजवानों की हौसला अफजाई करती है कि वो आजमाइशों में भी अपने ईमान को मजबूती से थामे रहे। चंद नौजवान अपने दीन को बचाने के लिए एक गार तक पहुंचते हैं, जहां अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनकी हिफाजत करता है। असहाब कहफ के नौजवान ऐसे दौर में रहते थे जब एक जालिम बादशाह ने बुत परस्ती को मुआशरे पर मुसल्लत कर रखा था। ये नौजवान अल्लाह के सच्चे मानने वाले थे और अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार करने की बड़ी हिम्मत की। उन्होंने अपनी जानों से ज़्यादा अपने अक़ीदे को अजीज़ रखा और अल्लाह पर कामिल ईमान के साथ अपने अर्द गिर्द के शिर्क से खुद को बचाने के लिए एक नया रास्ता तलाश किया। ये बात नौजवानों के लिए ये पैगाम रखती है कि जब हालात मुश्किल हों तब भी अल्लाह की मदद पर यकीन रखना चाहिए और हक़ की राह पर डटे रहना चाहिए। ये नौजवान मुस्लिम नस्ल के लिए मशन्ना हैं जो हमें अपने दीन की असल रूह पर अमल करने की तालीम देते हैं। अल्लाह के मुखलिस बंदों ने एक गार में पनाह ली ताकि जालिम बादशाह और उसकी फ़ौज से बच सकी।
इस सफ़र में उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनका वफादार साथी बन गया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन नौजवानों को नींद में डाल दिया ताकि वो महफूज रह सके। नौजवान सामीन के लिए ये लम्हा उन्हें ये सिखाता है कि दुनिया के चैलेंजेस और दबाव का सामना करते हुए अल्लाह की पनाह लेना हमारी असल हिफाजत है। ये वाक़या इस बात का अमली नमूना है कि कैसे एक सख्त कदम भी अल्लाह पर यकीन के साथ आसानी में बदल जाता है। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि असहाब कहफ गार में 309 साल तक सोए रहे। अल्लाह ने उनके जिस्मों को बिल्कुल महफूज रखा, बक़िता फ़ौक़िता उनकी करवट बदलाई और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। उनका कुत्ता, उनका वफादार साथी, गार के दहाने पर अपनी टांगें फैलाए उनकी पासबानी करता रहा। ये वाक़या मुस्लिम नौजवानों को ये पैगाम देता है कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। हमें अपनी मुश्किलात चाहे जितनी बड़ी लगी, अल्लाह के लिए वो मामूली है। ये नींद खुदा के मंसूबे की गहराई और मुस्तकबिल के लिए भरोसा रखने का एक अजीम सबक पेश करती है। जब अल्लाह ने इन नौजवानों को नींद से जागाया तो वो अपने नींद के वक्त का अंदाज़ा लगाने लगे। कुछ ने कहा कि वो एक दिन या कुछ वक्त के लिए सोए थे, लेकिन हकीकत नाकाबिल यकीन थी। एक शख्स जब खाने के लिए शहर गया तो उसने देखा कि पूरा मुआशरा बदल चुका था और जालिम बादशाह का दौर ख़त्म हो चुका था। ये वाक़या मुस्लिम नौजवानों को ये सिखाता है कि अल्लाह वक्त को जिस तरह चाहे मोड़ सकता है और वक्त सिर्फ अल्लाह की एक तख्लीक है। ये हमें याद दहानी करवाता है कि मुश्किलात के दौर गुजर जाते हैं अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ये पूरी कहानी कुरान में कई मकामात पर बयान हुई है जो नौजवानों के लिए उसकी अहमियत को बढ़ाती है। गार में पनाह लेने की दुआ। जब इन जवानों ने गार में पनाह ली और कहा कि हमारे रब, हमें अपनी जानिब से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई फराहम फरमा। सूरा कहफ 10। वफादार कुत्ते का जिक्र। और तुम उन्हें देखते तो ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पंजे फैलाए हुए था। सूरा कहफ 18। तवील नींद का दौरानिया। और वो अपनी गार में 300 साल तक ठहरे रहे और उस पर मजीद 9 साल बढ़ गए। सूरा कहफ 25। ये आयत नौजवानों को बेमिसाल असबाब फराहम करती हैं कि मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह के मंसूबे कितने हैरान कुन और अजीम हो सकते हैं। असहाब कहफ की ये कहानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे, सब्र और हक के साथ खड़े रहने का दर्स देती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह अपने ईमान वालों की हिफाजत किस तरह करता है। वो किसी भी मुश्किल को आसान कर सकता है और आखिरत का वादा हमेशा सच है। ये कहानी नौजवान मुसलमानों के लिए एक तहरीक है कि वो अपने ईमान को बरकरार रखें और हर आजमाइश में सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करें। असहाब कहफ की कहानी नौजवानों को ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की अहमियत सिखाती है। इस कहानी में कुत्ते की वफादारी को भी नुमायां किया गया है। वो इन नौजवानों के साथ न सिर्फ सफ़र में बल्कि गार के दहाने पर भी उनकी हिफाजत करते हुए नजर आता है। ये वाक़या जानवरों के साथ हमारे हसन सलूक और उनकी वफादारी की अहमियत को उजागर करता है। कुत्तों जैसी मखलूक़ात भी अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा हैं और उनके किरदार को इज़्ज़त देना हमारे दीन की तालीमात में शामिल है। असहाब कहफ की कहानी मुस्लिम नौजवानों के लिए एक अजीम मशलरा है जो उन्हें चैलेंजिंग हालात में अल्लाह पर यकीन रखने, अपने दीन को मजबूती से थामने और सब्र और हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारने का दर्स देती है। ये वाक़या अल्लाह की लामहदूद कुदरत, उसकी रहमत और हर दौर में उसकी मदद की अमली मिसाल है। ये कहानी हमारी ज़िंदगी में ईमान, तवक्कुल और अल्लाह की जानिब रुजू करने की सबसे रोशन रहनुमाई है जो हमें क़यामत तक रोशनी फराहम करती रहेगी।